All of you, this is Narendra Kumar. Today is the fourth day, in fact, the fourth day for our C programming session, and I hope you are doing fine, perfect, and everybody is healthy, happy. So let's start today's session. In my last session, I had talked about scanf function. That was the main thing which I had discussed. Scanf is a function. Again, I am saying about that before I proceed with the new things. So scanf is a function which used to take input from keyboard from a user. एक यूजर से अगर हम इनपुट लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर इनपुट ले और उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर दे, तो ये काम करने के लिए हम लोग scanf फंक्शन को यूज करते हैं. सो scanf का सिंटैक्स जो होता है, तरीका, सिंटैक्स मीन्स द वे हाउ टू यूज ए फंक्शन. सो द फंक्शन scanf सिंटैक्स इज scanf फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स %d डबल कोट्स बंद कॉमा ampersand, then the variable name which you have declared, then close the first bracket, then semicolon. This is the line which will take the value from a user through keyboard. Now there is a question. In a scanf function, what does %d role? %d का role क्या है? When we write %d, it is going to take integer value, a number. In fact, a whole number. A whole number is a number which is not having any fractional part. For example, if I want to give a number 7, so 7 is a whole number. If we say 7.2, it's not a whole number. It's not an integer. It's a number with fractional part. So कहने का मतलब है %d अगर हम लोग scanf फंक्शन में लगाते हैं, जिसको हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बोलते हैं, तो वो इंटीजर वैल्यू एक होल नंबर इनपुट लेगा यूजर से और कीबोर्ड से. आगे चलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में. %d के अलावा %f भी हम यूज कर सकते हैं. सपोज वी हैव ए वेरिएबल विच इज ए फ्लोट वेरिएबल, विच इज वेरिएबल विच इज हैविंग कैपेसिटी ऑफ टेकिंग नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट. अगर हम एक नंबर दशमलव के साथ इनपुट करना चाहेंगे सेम scanf फंक्शन के थ्रू, तो हम %d के जगह %f लिख देंगे. तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर एक है %c. C stands for character. Okay, so again I am saying %d in scanf means a number, it's a whole number. %f means a number having fractional part too, like 10.5, 10.2, 10.00, 1.5 and so on, right? And if we say %c means character value, we can ask computer to take a character value. Character value means a single character, like F is a character, N is a character, A is, B is a character. So individual character, alphabets हो सकते हैं, कोई एक स्पेशल सिंबल भी हो सकता है कीबोर्ड का, जैसे हैश, ampersand, or any character from keyboard can be accepted by computer through C programming, through scanf %c, and बाकी चीज कॉमन होगा ampersand, then variable name and bracket close. एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जिसको कहते हैं जिसे कहते हैं %s. %s is used to take a whole line, in fact group of characters, and for taking group of character we have to use %s in scanf function. And प्लीज रिमेंबर, वहां पर वेरिएबल के नाम के आगे ampersand सिंबल नहीं होगा. Ampersand should not be given when we are using %s in scanf function. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक वेरिएबल है s, उसमें हम एक स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे scanf %s डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स बंद होगा, कॉमा, देन वेरिएबल का नाम अगर s है मान लेते हैं, तो वी विल राइट कॉमा s, नॉट %s. I hope in fact you are understanding what I'm saying, what difference we can see, what kind of differences are there in all this format specifier, like %d, %c, %f, %s. So this is very important in C programming.
See, when you are doing programming, then small things are like small equipment. If you don't know what equipment is used for what purpose in your real life too, then it is very difficult to use this equipment. ठीक वैसे ही प्रोग्रामिंग में होता है कि प्रोग्रामिंग में अगर आप छोटे छोटे कीवर्ड्स या छोटे छोटे जो क्या कहते हैं ऑप्शंस होते हैं या फिर जो भी एलिमेंट होते हैं छोटे छोटे, उसे आप नहीं जानेंगे तो आप प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे. सो बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग. ओके, नाउ स्कैनएफ की बात हो गई. नाउ आई विल टेल यू अबाउट वन मोर थिंग. कि फिर से एक बार कहता हूं कि प्रिंटएफ और स्कैनएफ में एक ही डिफरेंस है. मैंने क्लास सेशन में बोला था कि प्रिंटएफ इज यूज्ड टू प्रिंट अ मैसेज एज वेल एज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल. और जब प्रिंटएफ फंक्शन यूज करते हैं तो वेरिएबल के नेम के आगे हम लोग एम्परसेंड यूज नहीं करते, लेकिन जब स्कैनएफ यूज करते हैं तो वेरिएबल के नेम के आगे एम्परसेंड यूज करते हैं और उससे पहले एक कॉमा होगा और उससे पहले डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट नेक्स्ट इन प्रोग्रामिंग. अब हम क्या सीखे प्रोग्रामिंग में. देखिए, प्रोग्रामिंग इज full of the need or the requirement which a user wants, For example, अब हम एक एग्जाम्पल लेके फिर चलते हैं. then it would be better to understand the next thing. Suppose हमको एक प्रोग्राम करना है जिसमें हम चाहते हैं कि कंप्यूटर should ask two different numbers from a user, and once the number had been entered, both the numbers should be added, summed, and the result should be shown on the screen of computer. दो नंबर कंप्यूटर मांगे, दोनों को जोड़े और दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट होता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो दिखा दे. ये काम अगर हमको करना है तो अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रोग्रामिंग स्किल सीखे हैं, जो भी हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स को समझे हैं, उसको अगर समझते हुए हम आगे बढ़े तो इस प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे, थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा. हियर वी विल यूज सम वेरिएबल. Okay, then we'll use we'll use a printf function for some messages, and then a scanf function for taking the numbers, in fact 2 numbers. Then we will add them. How to add? We'll use some operators, mathematical operator or arithmetical operator, and आज उस पर भी थोड़ा बात करेंगे. एंड दोनों को जोड़ने के बाद फिर उसको फिर प्रिंट करवाएंगे. तो इसके बारे में सोचिएगा थोड़ा और इस प्रोग्राम को करिएगा. नाउ व्हाट आई एम going to tell you about the operators used in C programming. अभी तक आपने प्रिंटफ स्कैनफ जाना. अब कुछ ऑपरेटर्स. पहला ऑपरेटर है मैथमेटिकल ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर. जैसे आपको कंप्यूटर को ये कहना है अपने सी प्रोग्राम के थ्रू कि एडिशन करो, डू एडिशन. तो एडिशन के लिए आप प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे जो कीबोर्ड में होता है, जो आपके रियल लाइफ, आपके नॉर्मल जो मैनुअल सिस्टम में भी आप जब कोई मैथ्स बनाते हैं तो एडिशन के लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं दैट इज प्लस. वही प्लस सिंबल यहां भी यूज होगा. नाउ नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे तो माइनस साइन जो हम लोग मैनुअल सिस्टम में यूज करते हैं रियल लाइफ में वही यूज होगा, यहां भी कीबोर्ड में होता है. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. एडिशन के लिए प्लस साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस साइन. जो आप नॉर्मली यूज करते हो वो कीबोर्ड में होगा, वहां भी वैसा ही प्रिंट होगा. मल्टीप्लिकेशन भी एक अर्थमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर है. मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको जो ऑपरेटर यूज करना होगा वो इनटू होगा और उसका साइन स्टार. कीबोर्ड में आपको स्टार दिखेगा. एस्ट्रिक भी बोलते हैं उसे, एस्ट्रिक और स्टार इज देयर इन कीबोर्ड. यूज दैट ऑल्सो. इन फैक्ट इफ यू रिक्वायर मल्टीप्लिकेशन ओके ऑपरेशन या आप कंप्यूटर से मल्टीप्लाई करवाना चाहेंगे तो आप स्टार यूज करेंगे. नेक्स्ट एक अगला ऑपरेटर होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर, वो होता है स्लैश. ठीक है, इनफैक्ट फ्रंट स्लैश, ऐसे फ्रंट स्लैश. जैसे आपको एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है. सो सपोज ए इज ए नंबर, बी इज ए नंबर, ए शुड बी डिवाइडेड बाय बी, देन ए फ्रंट स्लैश बी लिखेंगे आप. तो ये हो गया डिविजनल ऑपरेटर, डिवीजन के लिए यूज होने वाला ऑपरेटर जो सी प्रोग्रामिंग में यूज होता है. और लास्ट ऑपरेटर जिसको हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं, वो होता है परसेंट का साइन. आपके कीबोर्ड में परसेंट साइन दिखेगा आपको.
अगर आपने लिखा ए मॉडुलस ऑपरेटर बी मीन्स A%B, तो यहां परसेंट का मतलब होगा मॉडुलस ऑपरेटर। वो क्या करेगा, वो भी एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करेगा, लेकिन फ्रंट स्लैश जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया A डिवाइडेड बाई B यानी A फ्रंट स्लैश B अगर आप लिखेंगे तो A को B से डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट वैल्यू होगा, फ्रंट स्लैश जो होगा वो कोसेंट वैल्यू रिटर्न करेगा, आंसर करेगा। और परसेंट साइन यानी मॉडुलस ऑपरेटर जो है, अगर आप A%B लिखते हैं तो A विल बी डिवाइडेड बाई B एंड दिस टाइम द रिमाइंडर ऑफ the division will be returned by this operator, modulus operator. Modulus operator क्या करेगा, A को B से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा, इनफैक्ट रिमाइंडर बोलते हैं उसको, ओके, रिमाइंडर वुड बी रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट होगा 2 और रिमाइंडर होगा 1, ओके। तो फ्रंटस्लैश ऑपरेटर जो है वो 2 रिटर्न करेगा यानी क्वोशेंट, और मॉडुलस ऑपरेटर जो होगा वो रिमाइंडर जो बचेगा वो रिटर्न करेगा। तो आज आप इतना जानिए, हम लोग फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर आपको एक बात कहता हूं कि थोड़ा ये ट्राई करिएगा कि एक प्रोग्राम लिखिएगा जिसमें सारे जो कैलकुलेशंस होते हैं, बेसिक कैलकुलेशन, यानी राइट ए प्रोग्राम टू मेक ए कैलकुलेटर, जिसमें स्क्रीन पे लिखा आएगा एडिशन, नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 4 डिवीजन, ओके। ये 4 ऑप्शंस होंगे और ये चारों ऑप्शन स्क्रीन पे दिखना चाहिए। और ये चारों जो ऑपरेशन है वो आप कैसे करेंगे कि कोई 2 नंबर होगा, इनफैक्ट कोई 2 नंबर इनपुट लेगा कंप्यूटर, उस दोनों को पहला जो मैसेज आएगा आफ्टर एडिशन, सपोज 5 and 2 नंबर्स आर गिवन टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहला एडिशन लिख के 5 + 2 यानी 7 दिखाएगा, सब्ट्रैक्शन लिख के 5 - 2 यानी 3 आंसर करेगा, डिवीजन लिख के 5 डिवाइडेड बाई 2 क्वोशेंट रिटर्न करेगा। फिर एक डिवीजन आप करवा सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 और उसमें रिमाइंडर जो होगा वो रिटर्न करेगा। फिर 5 × 2 करवा के स्क्रीन पे दिखाएं। तो यू थिंक अबाउट दिस, टिल देन हैव ए गुड time to all of you, and I hope you are understanding my sessions. Thank you so much for viewing me. Thanks a lot.